गुड इवनिंग दोस्तों। आज हेड स्टैंड के बारे में चर्चा करेंगे। हेड स्टैंड को किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम को ज़्यादा खराब किए अब स्टार्ट करते हैं हेड स्टैंड। हेड स्टैंड करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, जो कि बहुत ही आवश्यक है वार्म अप करना। वार्म अप के लिए सबसे बेस्ट है आप कैट पोज कर लें। कैट पोज के लिए आप दोनों हाथ के पंजे को, हाथ को नहीं रखना है, हाथ की जो उंगलियां हैं उसको ग्राउंड पे टच करके रखेंगे और दोनों नी और दोनों हाथों के बीच का गैप बराबर रखेंगे। ब्रीथ इन करते हुए हेड अप, स्पाइन डाउन। ब्रीथ आउट करते हुए हेड डाउन, स्पाइन अप। Okay, now we will start how to perform headstand. Okay, let's start how to perform headstand. So for headstand, you should keep something on your head so that your head may not get injured. So first, lock both the hand like this and keep on the ground. And fix your central head to this cap that you have maintained through this locking. So let's start. We will start first. After doing warm up, you can practice this in the time of evening only. But in the morning, you should do much more warm up to perform this. Now slowly you have to come forward. Make this posture first. After that, lift one leg. Another will be lifted automatically. Normal breathing you should perform during this process and slowly come back one by one. Now,
For clear visualization, I will perform this from the another side so you can understand better. So if you not comfortable, do like this. After that, lock. Lift one leg first, after another, slowly. Keep your whole body parts straight, and the toes of your legs should be completely straight. Now you can practice Padmasana in this posture also by locking like this. And in a starting you should do 2 minutes only, not more than that. Otherwise your body will not understand what you are going to do with your system, internal organs. So only 2 minutes you should perform initially, and gradually you can increase. This practice tone the complete hormonal systems, complete endocrine glands, secretion hormones. Now slowly come back. After doing this, you must do Sasankasana. As your blood circulation has increased towards your head, so it should gradually distribute to the body. That's why to as a counterbalance pose, you should practice Sasankasana after headstand pose or Sirsasana. For Sasankasana, raise your hand slowly. Come this side. After that, stretch your both the hands and try to touch your forehead to the ground. And sit properly back side. You should not lift your back during Sasankasana. जब Sasankasana आप करें तो पीछे से हिप को नहीं उठाएंगे, हिप को ग्राउंड पे ही रखें पूरी तरीके से, और स्पाइन को जितना ज्यादा आप आगे की ओर खींचेंगे उतना बेहतरीन आपका शरीर खुलेगा और स्पाइन में मजबूती आएगा, उतना ज्यादा आपका स्पाइन स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह से खींच के रखें अपने स्पाइन को, दोनों हाथों को, और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें 3 बार। योग में स्थिरता बहुत आवश्यक है, इसलिए जो भी अभ्यास करें, कोई भी पोज आप करें तो उसमें ठहरना अति आवश्यक है। यदि आप ठहरेंगे नहीं किसी अभ्यास में तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कोई भी अभ्यास करें लगभग कम से कम 3 ब्रीदिंग्स तो अवश्य करें। कोई भी अभ्यास, यदि मयूरासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, कोई भी करें तो स्टार्टिंग में लगभग लंबी गहरी सांस 3 बार भरें, 3 बार छोड़ें उसी अभ्यास में। अब आपका सशंकासन जब करें तो पीछे का पैर किस तरह रहता है वो मैं आपको इस तरह से दिखाता हूं। ये आपका लेफ्ट टोज जो है सो जमीन पे रहेगा, पहले लेफ्ट वाला टोज, उसके ऊपर राइट का टोज, और यहाँ पूरी तरीके से आप बैठ जाएं। उसके बाद जब आप सशंकासन करें तो इसे उठाएंगे नहीं, इस तरह से अभ्यास को करेंगे। ये आपका परफेक्ट पोज हुआ। अब नेक्स्ट अभ्यास जो करें, आप किसी भी अभ्यास को करने के बाद यदि आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो शवासन में लेट सकते हैं। शवासन का मतलब एक सौ के समान शरीर को पूरी तरीके से लूज छोड़ दें और आपका शरीर का बॉडी का जो भी वेट है वो ग्राउंड पे ढीला छोड़ दें। अपने अवेयरनेस और कंसंट्रेशन को शरीर के सारे हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करें। आज मनुष्य का अवेयरनेस कहीं और होता है, क्योंकि शरीर आपका यहाँ भले हो लेकिन आपका जो मन है से कहीं ना कहीं विचरते रहता है।
तो मन पे कंट्रोल करना सबसे मेन मुख्य उद्देश्य होता है योग का। योग का उद्देश्य एक्सरसाइज या फिजिकल वार्म अप टाइप का चीज नहीं है, यह मन पे कंट्रोल करता है। यदि आप एक बार मन पे कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपके जो पांचों इंद्रियां हैं उस पर आप कंट्रोल पा लेंगे। और एक बार यदि आप इंद्रियों पे कंट्रोल पाए तो फिर आपको किसी तरह का दुख अपने कारण नहीं होगा, और यदि दूसरे पहुंचाना भी चाहते हैं तो आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। जो जैसा उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आप बदलने की कोशिश करते हैं किसी चीज को तभी परेशानी उत्पन्न होती है। आप किसी को यदि सलाह देंगे तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपका बात नहीं मान रहा है फिर भी आप जबरदस्ती मनवाना चाह रहे हैं तो सामने वाला को गुस्सा आ जाता है। तो इससे क्या होता है, उसके मन में जो विचार चले आपके प्रति, जो भी नेगेटिव विचार चले, उसका जो रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन जो होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार, वो चीज हर जगह पे सत्य है और काम भी करता है। तो रिफ्लेक्शन के कारण आपके मस्तिष्क पे भी प्रभाव पहुंचाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेंज, मस्तिष्क हर तरह के फ्रीक्वेंसी के रेंज को ग्रहण करने में सक्षम है। आप मोबाइल फोन का फ्रीक्वेंसी का रेंज देखें अलग अलग, 3G का 4G का अलग है, 1800 से 2100 मेगाहर्ट्ज, 5G आने वाला उसका रेंज अलग होगा। हर तरह के फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी मस्तिष्क में है, लेकिन आप उस बैंड को पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं, उतना आप मस्तिष्क का यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है अलग अलग। क्योंकि टेलोपैथी एक योग में आप देखेंगे, टेलोपैथी जो दूर से हीलिंग करते हैं, जैसे रेकी हीलिंग का भी नाम दिया जाता है, किसी बहुत दूर बैठे क्लाइंट को भी आप ठीक कर सकते हैं। जो बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, तो आप बहुत जल्दी उसे ठीक कर सकते हैं एनर्जी हीलिंग के द्वारा। आप अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, आप अपने एनर्जी को हाथों में लाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, विचारों में लाते हैं, विचारों से एनर्जी को ट्रांसफर करके किसी को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा खेल क्या है, फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी का जनरेशन, आप किस तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं और आपका मस्तिष्क किस तरह का फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है। यदि नेगेटिव कैच कर रहा है तो आपके अंदर नेगेटिविटी उत्पन्न होगा। आप ऐसे भी किसी इन्वायरमेंट में जाएं जहां ज्यादा नेगेटिविटी है, वहां देखें आपका विचार बदल जाएगा। यदि आप किसी तीर्थ स्थान पे जाएं तो आपका विचार बदल जाएगा, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट, वहां जो जनरेट होने वाली फ्रीक्वेंसीज है वो पॉजिटिव नेचर की है। तो पॉजिटिव नेचर से आप पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो आपका विचार शुद्ध और सात्विक टाइप का होगा। जैसे आप कभी फील किए होंगे, हरिद्वार तरफ गए होंगे, शांति कुंज के अंदर गए होंगे, तो आपका विचार ऑटोमेटिकली बदल गया होगा या बदल जाता है। यदि नहीं, यदि एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा अभ्यास करते हैं। दूसरा एक अभ्यास, क्योंकि लोगों के पास समय की बहुत कमी है आज के डेट में, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, फिर भी लोगों के पास समय की कमी है, और समय की कमी हमेशा बनी रहती है। समय को निकालना ही पड़ता है। यदि आप शरीर को फिट रखना चाहते हैं तो समय को 10-15 मिनट आपको निकालना ही होगा। तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाएं, तो आप देखिए, मात्र 3 अभ्यास करके आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। एक आपका कैट पोज, दूसरा माउंटेन पोज एंड कोबरा पोज साइमल्टेनियसली साथ साथ करेंगे। माउंटेन पोज और कोबरा पोज, जिसको कहते हैं भुजंगासन और पर्वतासन। सांस को छोड़ते हुए अंदर पूरा ध्यान पूर्वक देखेंगे किस तरह करना है, और उसी तरह से करेंगे। आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं लाएंगे। आपका दोनों हिल ग्राउंड पे टच रहेगा। टच नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो स्पाइन वाला पार्ट है वो बिल्कुल सीधा रखें और खींच के रखें, लंबा करके रखें। फिर ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे वापस। ये शोल्डर को इस तरह से उठाना बिल्कुल नहीं, शोल्डर को बिल्कुल तान के रखें ऊपर की ओर, और इसी पोस्चर में मेंटेन करके रखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स। किसी भी अभ्यास में होल्ड करना अति आवश्यक।
वेरी गुड। ब्रीद आउट करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को अंदर की ओर ले जाएंगे। फिर ब्रीद इन करते हुए सांस को अंदर भरते हुए ऊपर की ओर देखें। फिर यहाँ पे होल्ड करें, लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े 3 बार। इसके बाद का अभ्यास करें। अब आपका स्पाइन का ट्विस्टिंग फॉरवर्ड और बेंडिंग में हो चुका है। अब इसको ट्विस्ट करें, क्योंकि एनर्जी का चैनलाइजेशन जो होता है मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक करने के लिए आपके स्पाइन को एक्टिव होना अति आवश्यक है। यदि आपका स्पाइन जवान है तब आप समझें कि आप अभी जवान, आपको किसी तरह की तकलीफ दिक्कत नहीं होगी। तो स्पाइन में तंदुरुस्ती लाने के लिए स्पाइन के लिए अभ्यास आप करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस पैर को यहां रख लें ठीक तरीके से। इस नी को क्रॉस कर दें इस पैर से। सांस को भरते हुए ऊपर की ओर हाथ को ले जाएंगे, ब्रीद इन करते हुए, और सांस को पूरी तरीके से छोड़ें और इसको अपोजिट में प्रेशर दें। इस हाथ को पीछे ले जाएं और पहले आप वेस्ट एरिया को ट्विस्ट करेंगे, वेस्ट एरिया को, उसके बाद चेस्ट को और शोल्डर को, उसके बाद नेक को, इस तरह सीक्वेंस में ट्विस्ट करेंगे। और होल्ड करके रखें पोस्चर को। 3 बार लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। जबकि ट्विस्ट करने के बाद सांस को लेना और छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ से ओके। ट्विस्ट करने के बाद लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप आसानी से जितना लंबा गहरा सांस भर सकें छोड़ सकें उतना ही करेंगे। ब्रीद इन करते हुए फिर वापस आ जाएंगे धीरे धीरे, फिर दूसरे साइड से करें। इस तरह से वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को 3 बार करें। इस अभ्यास को करने के बाद आप कोशिश करें मयूरासन का। मयूरासन लोग कहते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं। यदि आपका मन और आप यदि किसी भी तरह की चीज को करने का ठान लेते हैं, एक तरह का डिटर्मिनेशन लेकर आते हैं, तो आप अवश्य कर लेंगे। क्योंकि ये सारे अभ्यास जो है 10-15 मिनट करने के बाद किसी और चीज की करने की आवश्यकता नहीं होती। पहले दोनों पाम को इस तरह से उल्टा रखेंगे और ये दोनों एल्बो है तो नेवल सेंटर के जस्ट साइड में रखेंगे। तो आप शरीर के भार को इस पे होल्ड करना होता है इस तरह से, और ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठा देंगे और होल्ड करके रखें। जितना देर आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं उतना ही रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद तुरंत शशंकासन करेंगे, क्योंकि इस अभ्यास के बाद रिलैक्सेशन अति आवश्यक है। और तब तक शशंकासन करेंगे जब तक कि आपका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल नहीं हो जाए। इस अभ्यास को करने के बाद अब सीधा शवासन करें। शवासन कंप्लीट रिलैक्सेशन पोज। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैर के बीच में लगभग 12 इंच या उससे ज्यादा गैप दे देंगे। दोनों हाथों को भी अपने थाई से बगल में रखेंगे और पाम जो होगा वो आसमान की ओर करके रखें।
अब इस अभ्यास में शरीर को एक एक पार्ट करके ढीला छोड़ेंगे, लूज। Starting from leg side, concentrate on your heels, ankles, toes, and try to leave loose completely with complete awareness and focus. Now concentrate on your knee, kneecap, and leave loose completely. Now concentrate on your hip joints, waist muscles, waist joints, and leave loose completely. Now concentrate on your stomach and related organs like duodenum, small intestine, large intestine, pancreas, kidney, liver, and try to leave loose completely with complete awareness and focus. Now concentrate on your chest and related organs like heart, lungs, rib cage, and all the supporting muscles, and try to leave loose completely. Now concentrate on your neck muscles, spine lines, all the joints of your spine starting from tailbone to spinal cord, and try to leave loose completely. Now concentrate on your shoulder joints, elbow joints, wrist joints, all 5 fingers and joints of fingers including palm muscles, and leave loose completely. Now maintain a smile on the face and leave your body parts loose completely. Now concentrate on your upper and lower jaw, both the ears, both the eyes, facial muscles, and try to leave loose completely. Maintain a smile on the face, leaving your facial muscles completely loose. Now concentrate on your central nervous system and leave loose completely with complete awareness and focus. Try to stop all kinds of thinking thoughts, input and output signal to the brain for a short while. And feel free from all the bondages of life for a short while. Now come back and try to visualize your automatic breathing, how you are breathing in and breathing out. Have a complete awareness and focus on your breathings only. Try to disconnect the whole body parts. Try to disconnect whole body parts and just constrain your focus. अपने फोकस को सीमित रखें अपने नोस्टल एरिया पे। शरीर के बाकी जगहों से अपने कंसंट्रेशन को हटा लें और पूरी तरीके से अपने नोस्टल एरिया पे ही कंसंट्रेट करें और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। आते जाते सांसों पे ध्यान को केंद्रित करके रखें। विचार इधर उधर के आते हैं तो उसे कोशिश करें कि विचारों को आने दें, लेकिन उसे विचारों को रोकने की कोशिश करें। धीरे धीरे स्वतः ही विचार रुक जाएंगे आप जब आप अपनी कंसंट्रेशन को एक जगह पे फिक्स करेंगे नोस्टल एरिया पे, और अपने आते जाते सांसों को ही ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे। और चेहरे पे स्माइल को मेंटेन करके रखें कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक, बिना कोई ब्रेक के, क्योंकि विचारों को यदि आप आने देंगे, विचार अलग अलग तरह के आएंगे तो आपका स्माइल जो आप कर रहे हैं, चेहरे पे जो मुस्कान है वो ब्रेक हो सकता है। इसीलिए आप कंटिन्यूअसली फोकस करके रखेंगे तो आप ये स्माइल आपसे छिनेगी नहीं और आपके पास ही रहेगी हमेशा। इसीलिए आप चेहरे पे स्माइल को मेंटेन करके रखें कंटिन्यूअसली जब तक आप इस शवासन में हो हैं, योग निद्रा में हैं, रिलैक्सेशन पोज में हैं, तब तक। वेरी गुड, कम बैक। Now try to visualize fast oxygenated blood circulation in your body parts. Try to visualize each and every parts of your body cells. Try to visualize each and every parts of your body becomes completely healthy and strong. Now make a tight fist. दोनों मुट्ठियों को पूरी ताकत के साथ बंद करें. And visualize yourself as the strongest person. Feel high level of energy inside in each and every parts of the body. Now take it as an oath for the day that you will maintain a smile on the face. You will make others also a smile, whoever you meet or talk to. Now rub both the hands, apply on the face, ear, eyes, and sit down by taking left turn for pranayama. We will practice. इस तरह से वापस आ जाएंगे। अब करें प्राणायाम। प्राणायाम के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन सबसे उत्तम है और सबसे आसान सुखासन। उसके बाद पद्मासन लगा सकते हैं, इस तरह से दोनों पैर चढ़ाने के बाद पद्मासन, या तो फिर स्वस्तिकासन। इस पैर को, ये जो आपका थाई है और एक काफ मसल होता है उसके बीच में इसको इंसर्ट कर दें, फिर दूसरे पैर को भी इसी तरह से इंसर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा स्वस्तिकासन। तो इस तरह से किसी भी आसन में आप बैठें शांतिपूर्वक, आपका स्पाइन जो है सब पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखें, और इस तरह से करेंगे तो हाथ आपका थक जाएगा, तो इसीलिए इस तरह से करेंगे टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं हो आपका ये शोल्डर, टू हो, इसी डायरेक्शन में हो तो आपका इस यहाँ पे दर्द नहीं होगा, ना इधर साइड में दर्द होगा। इस तरह आप लंबे समय तक कर सकते हैं। 2 उंगली को आईब्रो सेंटर पे रखेंगे, यहाँ आज्ञा चक्र पे, यहाँ थर्ड आई भी बोलते हैं किसी कोई इसको, यहाँ पे रखेंगे 2 उंगली को। और ये आपका जो रिंग फिंगर है और थंब फिंगर वो नोस्टल को खोलने और बंद करने के लिए फ्री रहेगा। एक जो लिटिल फिंगर है उसको यहाँ पे लॉक करके रखेंगे। तो इतना आप अभ्यास में करना है बस। इस हाथ को इस तरह रखेंगे, चिन्ह मुद्रा इस तरह करेंगे तो इसे ज्ञान मुद्रा करते हैं। इस अभ्यास को लोग इस तरह से करते हैं विदाउट काउंटिंग, लेकिन यदि आपको स्ट्रेस को दूर करना है तो काउंटिंग के साथ करना अति आवश्यक है। आप 10 सेकंड में सांस को अंदर भरें और 20 सेकंड में छोड़ें, तब ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद का जो अभ्यास है वो होता है कुंभक का। कुंभक का मतलब होता है कि अपने सांस को अंदर रोक कर रखना, होल्ड करके रखना अपनी क्षमता के अनुसार। एक ही बार बहुत ज्यादा अंदर होल्ड करके जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। इसीलिए इसमें हमेशा कहा जाता है कि आप कभी भी योगाभ्यास करें तो स्टार्टिंग में आप किसी प्रोफेशनल के समक्ष प्रैक्टिस करें, ताकि आपको सही ज्ञान प्राप्त हो और उसमें अपना आप दिमाग ज्यादा ना लगा दें, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगा देने से इंजरीज हो सकती है योगाभ्यास में। जैसे टफ योगाभ्यास हैं, आप वीडियो को देखें, फोटो देखें, पोज को, किसी भी पोज को देखें, उसको अपने आप अपने रूम में करना स्टार्ट कर दिए विदाउट हेल्प, तो उससे आपको इंजरीज हो सकती है। और योगाभ्यास के दौरान जो आई हुई इंजरीज है वो आपको बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे जो इंजरीज होती है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका जो बोन्स है, जो बोन्स के जॉइंट्स है वहां पे पड़ जाता है, जो जल्दी ठीक नहीं होता। तो इसीलिए आप ठीक तरीके से पहले समझें उसके बाद करें। तो अभी तो आप स्टार्टिंग है, अब से लाइव इसमें फेसबुक पे आएंगे ठीक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो आपको करवाएंगे किस तरह योगाभ्यास में आप अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप योगाभ्यास करें तो कोशिश करें कि अपने फैमिली को भी, माता पिता गार्जियन को भी जरूर करवाएं, क्योंकि आने वाला समय में, अभी के समय में ही आप देखें हर लोग डायबिटीज वगैरह से व्यस्त हैं, ग्रसित हैं, हाइपरटेंशन है, बहुत तरह की परेशानियों से जूझते हैं। कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस से उस लोगों की डेथ हो रही है जो डायबिटीज से ग्रसित हैं। यदि वो डायबिटीज से ग्रसित नहीं रहते तो बच जाते हैं। तो इसीलिए जो लाइफ स्टाइल की डिजीजेज हैं, जो गलत खान पान, गलत चाल चलन के कारण हो रही है, उससे छुटकारा पाने के लिए सबसे उत्तम उपाय यदि आप देखें तो योगाभ्यास है। यदि आप योग करें, डेली करने की आवश्यकता नहीं है, सप्ताह में भी यदि 2 दिन आप करेंगे तो आपको किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होगी। 1 दिन भी करें फिर भी आप बच जाएंगे। मतलब योग से आपको जुड़े रहना है बस। आप योग से जुड़े रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आपका जॉब भी चला जाएगा फिर भी आप परेशान नहीं होंगे। इस लॉकडाउन में ना जाने कितने लोगों का जॉब चला गया और उसके कारण कितने आत्महत्या भी लोग कर रहे होंगे, लेकिन उसका न्यूज अभी नहीं आ रहा है, बाद में हो सके आ जाए। तो इसीलिए
ये फ्रस्ट्रेशन, ये सारी जो समस्याएं हैं, उस पे कंट्रोल आप तभी कर पाएंगे जब आपके अपने मस्तिष्क पे आपका कंट्रोल हो। यदि मस्तिष्क आपको चलाने लगे तो आप समझ लिए आप अपने हाथ से निकल चुके हैं। तो इसीलिए आप योगाभ्यास से जुड़ें, योग करें और औरों को भी जोड़ें योग से, क्योंकि ये अपनी ही संस्कृति है, भारत की देन है जो विश्व तक पहुंचाई गई है। और विश्व जो दूसरे देश वाले हैं उसको सही तरीके से करते हैं, और इंडिया वाले सोचते हैं अपना खेती समझ कर इसको गलत गलत तरीके से करते हैं और बेनिफिट नहीं भी होता है। तो ठीक तरीके से करें, प्रॉपर सीक्वेंस में करें। योगाभ्यास में आने से पहले थोड़ा क्लिंजिंग कर लें, क्योंकि शरीर में ना जाने 20 साल के हैं, 25 साल के, आप 30 साल के हैं, तो 30 साल से जो अंदर अननेचुरल तरीके से जो खा रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं वो अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है, क्योंकि आप उसे पका रहे हैं, सिझा रहे हैं, बहुत तरह के मसाला उसमें डाल रहे हैं, तब खा रहे हैं, जो कि अननेचुरल है। उसके लिए सिस्टम हमारा नहीं बना है। तो इसीलिए जो आपका कचरा फंसा पड़ा है इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे निकालने के लिए आपको क्लींजिंग क्रियाएं करनी होगी, जो कि यदि योगाभ्यास के ग्रंथों की बात करें तो उसमें 6 क्लींजिंग क्रियाएं दिया हुआ है, षटकर्म जिसको बोलते हैं। तो क्लींजिंग के लिए बस मात्र मेरे पास 2 ही उपाय है, और इस 2 उपाय से आप पूरी तरीके से अपने पूरे मस्तिष्क के से लेकर पूरे लार्ज इंटेस्टाइन तक क्लीन कर सकते हैं। तो उससे क्लींजिंग से सिक्वेंसली हम स्टार्ट करेंगे अब योगाभ्यास लाइव में, ताकि सभी लोग जो हमसे जुड़ेंगे वो कम से कम पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकें और अपना जो भी टारगेट वो फिक्स किए हैं उसे अचीव कर पाए जल्दी से जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू जुड़ने के लिए। अगले वीडियो को फिर से प्लानिंग करके अगर करेंगे तो प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे हाफ स्क्रीन में ही चल रहा होगा, तो ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा। प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ करेंगे अगले में तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।